Hello everyone. I think there's just me right now. We just wait for people to join in. Yes, hello. So thanks to all who are so for a 6 p.m. start. There's still about 3 minutes left. We'll let people join in and see. I'm just trying to tag our page. Uh, Hello Akash. Can you see me? Because Anjali seems to be messaging that I'm not visible. Am I audible and visible? Can somebody please confirm who is joined? Hi Sushmita. Am I audible? Can you please confirm that to me, Sushmita? I'll just check if the Bluetooth speaker is also functioning properly. Yeah. So you just give it a minute or two more for people to join in, and in the meantime, uh, I'll try and send a few reminders to people. Thank you, Akash. Thanks for confirming. Thank you, Anjali. Yeah. Thank you, Sushmita, for confirming that, please. Anjali, you have requested me to take you live. Do you want me to do that? Thank you, Anjali. So, Anjali, it is 6 p.m. right now. I was just trying to see if I could also share the link to the the Facebook Live that we are doing right now on my own page, so that people who are on my own personal friend list, they'll be able to also. Right. Uh, is that audible now? Anjali, you mentioned separately that the voice is a little low. I can also switch off the air conditioner in the back. That would help. Uh, I think it's 6:01 p.m. right now, and if it's fine by all, I would start now. Right, Anjali? Anjali, if you could just give me a thumbs up. Right. So, good evening, friends. My name is Akshat Sinha, and I'm an artist and curator by my vocation, by my profession right now. Uh,
The thing is that I'm also a part of a mental health initiative called Mind at Ease. I'm the co-founder of Mind at Ease along with Preeti Singh. Uh, what I would like to share with you right up is that it's such a privilege to be here on Ansh Foundation's page. Ansh has been doing a complete series of sessions on people who've been coming live through their page, and I've been sharing a lot of information and insights about mental health and other aspects as well, not only to mental health, but a lot to do with life skills, a lot to do with how to make our own life uh, more interesting, how to understand our own life itself, and how to make it easier for the people out there in the society as well. Because man being a social animal, we exist in a society, we need our communications, we need our bonds. And despite the lockdown, I think actually the lockdown, what it has shown is that we crave for human interaction. And when this is so important for us, this human interaction, we also have to understand that whatever we say, we do, has an impact on others and has an impact on us as well. But before I get into that, I thought I will give you a brief about Ansh, because that's what I was trying to establish as a base. So Ansh is a foundation. It's a network of sensitive humans uh, who are working towards creating compassion and respect in society. They believe in aware, balanced mind will do less crime, less of abuse. So it is an effort to bring a change in the mindsets of the people. It is a registered NGO. What I also want to establish right now is, what is Mind at Ease? Mind at Ease is a mental health initiative which was started around 6 months back, something around the time when the first lockdown was put into place, where with Preeti Singh and we decided that there's a lot of need to alleviate the mental stress that was building up because of the lockdown. But not only that, we also have to look at how we make mental health discussions a part of day to day conversation, and how together we can make a society which is more empathetic towards others, uh, which is which is a society जो एक दूसरे की मदद करे, एक दूसरे को समझे. I'll try and keep this conversation in English or in Hindi because I'm not sure whom I'm speaking to, and I would like to connect with everyone. मैं चाहता हूँ कि सब लोग मुझसे जुड़ पाए, मेरी बातों को समझ पाए. सो आई विल काइंड ऑफ, इंडिया में क्योंकि हम इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं जो एक नई भाषा है, विच इज़ अ पुटिंग टुगेदर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश. So to tell you about Mind at Ease, our mandate is basically to promote mental health awareness. We do it through education, advocacy, and support, which is aligned with the Sustainable Development Goals of uh, uh, UN. So UN 2030 goals, the SDG 2030, उन सब के अंदर मेंटल हेल्थ भी एक बहुत ही बड़ी जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है. तो अगर हम इसको हमारे एक रोज़मर्रा के बातचीत का हिस्सा बनाना है, तो इसके लिए हमको जो है वो थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट करना पड़ेगा. हमें अपनी तरफ से जो है वो चीज़ें करनी पड़ेंगी, जिससे कि जो हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे साथ बिहेव करें जिस तरह से, हम भी उनके साथ जो है वो उस तरह का व्यवहार कर पाए. सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि आज का जो टॉपिक है वो है मेंटल हेल्थ, स्टॉप द स्टिग्मा. तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं व्हेन यू हियर द वर्ड स्टिग्मा, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड? स्टिग्मा सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? आप क्या समझते हैं? आप मुझे कमेंट्स में लिखें. मैं तब तक आपको एक आधा चीज़ और बताता हूँ, बट मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों का पर्सनली राय क्या है कि स्टिग्मा क्या होता है. मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो हमारा माइंडेड ईज है, हम एक जो एडवोकेसी कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की तरफ, उसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि एक डिस्क्लेमर जो है वो दिया जाए. मैं इंडिविजुअली एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ जिसने रशिया से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी थी, बीटेक फिर एमटेक, और करीब 10 साल काम करने के बाद मुझे लगा कि मुझे जो है जो मैं कर रहा हूँ वो नहीं करना चाहता. और मेरे साथ एक अच्छी बात ये थी कि जो मेरे पेरेंट्स थे, जो मेरी फैमिली थी, they were quite supportive of the fact that I could break off from what I was doing
और मैं कुछ नया जो है वो कोशिश कर सकता था। 2 साल ढूंढने के बाद कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैंने आर्ट की तरफ अपना रुझान जो है वो देखा। बचपन में शंकर्स आर्ट कंपटीशन में जो है स्कूल में मेरी मदर ले जाती थी, तो आई हैड वन अ फ्यू अवार्ड्स ऑल्सो। तो मुझे लगा कि जब मैंने एक पेंटिंग करके देखी तो मुझे लगा इसको मैं फॉलो करना चाहता हूँ, क्योंकि जो क्रिएट करने का मज़ा है वो बहुत ही अलग है। 1 साल का डिप्लोमा किया फाइन आर्ट्स के अंदर, उसके बाद से मैं एग्जीबिशंस करने लग गया। 2010 में मैंने अपना को जो है फर्स्ट एग्जीबिशन करी, और तब से जो है 10 साल के अंदर, जो पिछले 10 साल की मेरी 10 ईयर्स की जो जर्नी है आर्ट में, उसमें मैंने बहुत सारे अलग अलग जो है वो रोल्स परफॉर्म करे, एज एन आर्टिस्ट, एज अ क्यूरेटर। मैंने राइटिंग भी करी, जिसमें मैं शॉर्ट स्टोरीज भी करी, मैंने पोएट्री भी करी, रेसिटेशंस करे, महफिलों में गए हम। इसके साथ ही कॉमिक्स पे काम करा, स्ट्रीट आर्ट करी। फिर उसके बाद मुझे जो एज अ क्यूरेटर जो है, मैंने एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करी जो रशिया में थी, इंडियन कंटेम्प्रेरीज के ऊपर, जिसमें 44 इंडियन आर्टिस्ट थे। सो इन बिटवीन आई जस्ट शेयर दिस दैट आकाश का कहना है कि समथिंग विच एग्जिस्ट इन पब्लिक डोमेन दैट पीपल आर शाय टू टॉक अबाउट, फियरिंग स्टीरियोटाइप्स। बहुत खूब, बहुत खूब, ये बिल्कुल सही बात है। सुष्मिता का कहना है कि अदर्स ओपिनियन, पुअर ओपिनियन ऑफ अस, कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि स्टिग्मा की जो डेफिनेशन ओवरऑल दी गई है, वो ये कहती है कि डब्ल्यू के मैं आपको जो है बता रहा हूँ, कि जो स्टिग्मा है, इट कैन बी डिफाइंड एज अ मार्क ऑफ शेम, डिसग्रेस और डिसअप्रूवल। टैबू जो आपने बोला, बिल्कुल सही बात है, which results in an individual being rejected, discriminated against, and excluded from participating in a number of different areas of the society. Uh, लोग क्या कहेंगे, बिल्कुल हम इन चीज़ों को सोच के जो है, ये एक स्टिग्मा होता है, एक एक रोक होती है, एक हिचक होती है हमारे अंदर, कि कैसे हम इस चीज़ को जो है रोक सकें। कैसे हम रोक लेते हैं अपने आप को, ये सोच के कि लोग क्या कहेंगे। बड़ी पर मैं जब बात करना चाहा, तो मैंने कहा, मुझे सडनली हिंदी का शब्द नहीं याद आ रहा था कि स्टिग्मा को हिंदी में क्या कहते हैं। तो मैंने गूगल पे चेक करा, क्योंकि गूगल ही सब कुछ बता पाता है आजकल, सबसे आसान भी है। तो मैं थोड़ा शॉक हुआ, लेकिन ये सच्चाई है कि स्टिग्मा का जो हिंदी शब्द है वो कलंक है। और कलंक शब्द का मुझे लगता है कि जैसे ही मैंने पढ़ा, मेरे को एक जैसे धक्का सा लगा, मैं सोचने लग गया कि कलंक तो कितना हैवी वर्ड है। अगर हम हिंदी में कलंक कहें तो कितना जो है उसका जो है उसके साथ वेट अपने साथ लेके चलता है वो। स्टिग्मा पता नहीं क्यों है, एक स्टिग्मेटिक वर्ड है वो, टेबू है, बट उसमें वो इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन वो कलंक सुन पढ़ते ही मुझे काफी जो है वो उसने झकझोर सा भी दिया। हम माइंडेड टीज के अंदर जब अपना काम करते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो हमें यही लगता है कि जो बहुत ज़रूरी है वो है बातचीत। वो ज़रूरी बातचीत इसलिए है ताकि ये जो दीवारें हैं, ये जो हम अपना चश्मे के साइड में ब्लिंकर्स लगा लेते हैं, जिसकी वजह से हम इधर उधर नहीं देखना चाहते, उनको कैसे रोक सकें। लेकिन इसमें एक ज़रूरी चीज़ जो पहले कहनी चाहिए वो है एक डिस्क्लेमर। क्योंकि जैसा मैं बता रहा था, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, क्यूरेटर हूँ, और भी बहुत सी चीज़ों को मैं अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करता हूँ। लेकिन मैं एक सर्टिफाइड, एक डिग्री होल्डर, मैं ना साइकोलॉजिस्ट हूँ, ना मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, ना मैं काउंसलर हूँ। तो मैं किस बेसिस पर इन चीज़ों के बारे में बात कर सकता हूँ। हम अपने माइंडेड ईज में भी जब अपने इंस्टाग्राम लाइव और फेसबुक लाइव या दूसरी तरह के सेशंस करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि जो स्पेशलिस्ट हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स, वो सामने आए। वो जो है एक सीट ऑफ अथॉरिटी से, क्योंकि वो उनके पास वो नॉलेज है, वो एक क्रेडिबल नॉलेज हमारे साथ शेयर करें। होता क्या है कि आज भी हम सब जो है, अगर आप देखें तो हमारे जो फेसबुक व्हाट्सएप के मैसेजेस, जिन पे फॉरवर्ड की जो है वो एबिलिटी हमको मिली हुई है, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं, बहुत सी फेक न्यूज़ होती है, बहुत सी न्यूज़ होती है जो हम कई बार जो है उससे रिलेट करते हुए उसे शेयर कर देते हैं आगे, ये ना जाने हुए कि वो उसका सोर्स क्या है। तो ये सोर्स जानना बहुत ज़रूरी है बिफोर वी स्टार्ट डिसेमिनेटिंग एनी इन्फॉर्मेशन।
ये इन्फॉर्मेशन किसी तक पहुंचाने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए कि इसका सोर्स क्या है। इसलिए जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं मेंटल हेल्थ पे बात करने का, तो हम एक डिस्क्लेमर देते हैं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट इज शेयर्ड इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली। देयर इज नो कंटेंट इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ मेडिकल or professional advice. If you wish to discuss a medical or clinically diagnosed mental health condition, please write to us. आप हमारे को लिख सकते हैं contactmindeties@gmail.com पे। वी कैन हेल्प यू टू कनेक्ट। हम क्या कर सकते हैं, हम आपका जो है वो कॉन्टैक्ट करवा सकते हैं, हम आपको कनेक्ट कर सकते हैं काउंसलर्स, हेल्पलाइंस, साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट, जहाँ जैसी ज़रूरत हो। वो भी एक डिसीजन हम और आप जो है सिंपली बात करके लेंगे। उसके बाद क्या करना है और आपको कैसे इस चीज़ से मदद मिलेगी इस इंटरेक्शन से, अगर आपकी ज़रूरत है मेडिकल और क्लिनिकल डायग्नोसिस की, तो डेफिनेटली जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं उनका जो है रोल इसके अंदर बहुत अहम हो जाता है। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, हम और आप बात कर रहे हैं, हम सब इस सोसाइटी का हिस्सा हैं। हम सबको अपने आप को थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है, और बदलने से पहले चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम चीज़ों को जानते हैं, पहचानते हैं और समझने लगते हैं, तो उन चीज़ों से चाहे अनचाहे हमारा जो सोच है, जो हमारे एक्शंस को डिफाइन करती है, वो चेंज होने लगती है। सो बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इज़ वेरी इजी टू से। वो चेंज होगा कैसे हमारे अंदर, हमें जानना पड़ेगा, हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी अपने अंदर, दूसरों से बात करके, पढ़कर, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन को जो है वो पकड़कर। तो इन सब चीज़ों को मतलब ये डिस्क्लेमर मुझे लगता है कि क्योंकि ये हमारे हेल्थ से रिलेटेड है, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही इतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितना, मतलब मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। बट हम फिजिकल हेल्थ को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। फिजिकल हेल्थ का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि हम जो है हमारे साथ जो बीमारियां हैं या जो हमारी सिचुएशंस है या प्रॉब्लम्स है हम उनको मीट करें, हम अपनी फिटनेस पे भी ध्यान रखते हैं। तो जब हम फिटनेस का ध्यान अपनी फिजिकल के लिए रख सकते हैं, तो हम अपने मेंटल के लिए क्यों नहीं। क्योंकि मेंटल हेल्थ भी किसी ये भी एक जो है मैंने अभी कहीं पढ़ा था, आई एम ट्राइंग टू फाइंड, तो WHO का कहना है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, एंड नॉट मेरीली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। मतलब कि जो हमारी स्वास्थ्य है, वो हमारा स्वास्थ्य सिर्फ एक कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग के एक साथ होने पर है। वो ये नहीं है कि सिंपली कि एक कोई डिजीज या इन्फर्मिटी की एब्सेंस है, वो नहीं है, इस वजह से हम हेल्दी है। तो इससे एक बड़ी अच्छी चीज समझ में आती है कि जो मेंटल हेल्थ है वो सिर्फ जो है जो मेंटल डिसऑर्डर्स या डिसेबिलिटीज हैं उससे बहुत आगे तक है। हमारी मेंटल फिटनेस जो है, जिसको हम जो है अपने आप भी कंट्रोल कर सकते हैं, और जो हमारे डिसऑर्डर्स हैं और डिसेबिलिटीज हैं उन सबको अगर जोड़ के एक साथ करेंगे तो शायद मेंटल हेल्थ कवर हो पाए। दिस इज समथिंग दैट हैज बीन स्टेटेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने अपने शब्दों में ज़रूर कहा है, तो कहीं अगर जो है भूल चूक हो जाए तो आप प्लीज़ समझिएगा कि जो मैंने इंग्लिश में पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टेटमेंट पढ़ा था, वो इंग्लिश स्टेटमेंट, वो वर्ड टू वर्ड फ्रॉम देयर सोर्स है। एक रिपोर्ट कहती है वर्ल्ड हेल्थ की ऑर्गेनाइजेशन WHO की ही, कि करीब 7.5% इंडियन पॉपुलेशन सफ़र करती है किसी भी पुअर या मेंटल फॉर्म ऑफ पुअर एंड मेंटल हेल्थ कंडीशन से। तो पुअर मेंटल हेल्थ और इलनेस जो है वो 1/6 कॉन्स्टिट्यूट करती है सारे हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर्स में। जी, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स भी इसी के अंदर आते हैं, क्योंकि पर्सनालिटी हमारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमारी जो है वो मेंटल मेकअप से जो है वो कनेक्ट करती है, हमारे इमोशनल और साइकोलॉजिकल चीज़ों से कनेक्ट करती है। तो मुझे लगता है ये सब जो है आपस में जुड़कर एक, when we are completely together in our mind and with our body, do we have a proper personality and we are able to function properly. If there is any form of disability, infirmity, of disorder of any kind in any of these aspects of our health, तो मुझे लगता है कि हमारे को फंक्शन करने में इश्यूज आने लगते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि जो पुअर मेंटल हेल्थ और इलनेस है, दैट दैट अकाउंट्स फॉर 1/6 ऑफ द हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर्स। और इंडिया में नियरली 15% ऑफ द ग्लोबल मेंटल न्यूरोलॉजिकल एंड सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर्स का बर्डन है।
और जो रिसेंटली जो कोविड सिचुएशन हुई है, जो कोविड-19 आउटब्रेक हुआ है, ड्यूरिंग द लॉकडाउन वन itself, the Indian Psychiatric Society reported that mental health concerns have escalated by an alarming 20%, with an unprecedented rise in psychosocial concerns like family issues, depression, anxiety disorders, substance abuse, sexual abuse and domestic violence. इनका बढ़ना ज़रूर ये चीज़ दिखाता है कि कितना इस लॉकडाउन की वजह से हम पे स्ट्रेस बढ़ा. Stress and panic attacks have also increased by over 35%. This was by the Psychiatric Society, Indian Psychiatric Society. न्यूज़ एक्सप्रेस इंडिया का एक आर्टिकल आया था, मई में आया था, मई 2020 में, इसी में, which said that 61% Indians are experiencing mental health related issues because of the uncertainty and looming financial crisis during the lockdown. So these are, ये एक चीज ऐसी है जो बियॉन्ड दी अदर थिंग्स है, जो हमारी अनसर्टिनिटी हमारे सामने दिखती है, और जो फाइनेंशियल क्रंच हम फील करते हैं या हमारे फियर्स हैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट के हिसाब से, उसने काफ़ी हद तक हमारे जो है वो मेंटल हेल्थ इश्यूज को बढ़ा दिया है. मैं जानता हूँ कि राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो पोस्ट कोविड जो उन्होंने स्पेशल सेंटर स्टार्ट करा है, क्योंकि कोविड से ठीक होने के बाद भी लोगों को जो है वो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कुछ इम्पैक्ट हैं उनके ऊपर. दे हैव रेज्ड एन इशू वेयर मेंटल हेल्थ इज़ अ बिग कंसर्न, कि मेंटल हेल्थ जो है पोस्ट कोविड जो है लोगों को बहुत सपोर्ट चाहिए उसमें, क्योंकि एंजाइटी है, लोनलीनेस है, इस तरीके की चीज़ें सामने आई हैं. हम इन पे और बात करेंगे, लेकिन मैं चाह रहा था कि सबसे जो हमने बेसिस सेटअप करा है जिसके अंदर की मेंटल हेल्थ है, तो स्टिग्मा है. ये स्टिग्मा कहाँ से पैदा होता है, ये स्टिग्मा क्या है? जो ये कलंक तो एक भारी शब्द है, लेकिन अगर ये जो स्टिग्मा हम देखें तो मुझे लगता है कि जैसे हम बड़े होते हैं बचपन से ही, तो व्हाट वी लुक अराउंड, हमारे आसपास हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, टीवी, स्कूल, इन चीज़ों से, आसपास से, रोड पे लोगों के बिहेवियर को देखकर या ऐसी चीज़ों को देखकर हमारा मेंटल बिल्डअप बनता है. जी, एक क्वेश्चन है कि इज देयर एनी वे ऑफ ब्रेकिंग दिस टैबू अलोंग विथ हेल्दी कम्युनिकेशन. बहुत ज़रूरी है, और बिना कम्युनिकेशन के, मैं कहता हूँ पहले कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है और फिर उस कम्युनिकेशन का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है. और मैं उसी एस्पेक्ट के ऊपर आ रहा हूँ कि ये जो कम्युनिकेशन में गैप है वो हमारे बचपन से शुरू हो जाते हैं. मैं चश्मा पहनता था बचपन में, स्कूल में चश्मिश कहलाता था. तो जब पास के दोस्त बोलते हैं तो शायद आप उनको माइंड नहीं करते, कोई दूसरा बोलता है, टोन पे बड़ा फर्क पड़ता है कि किस तरीके की जो है वो आप पे बात बोली जा रही है. तो ये जो सार्केस्टिक कमेंट होते हैं वो चुभने लगते हैं. दे कुड बी एनीथिंग अबाउट योर कास्ट, कलर, पर्सनैलिटी, द वे यू लुक. और मैंने देखा है बच्चों के अंदर तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, तेरा जो है वो टिफ़िन बड़ा छोटा है और तेरा बैग फटा हुआ है. तो ये जो सब धीरे धीरे करके हम लोगों के ऊपर वो स्टिग्मेटाइज करना शुरू करते हैं उनकी इंडिविजुअल चीज़ों से, ये धीरे धीरे बिल्डअप होता है. हम फिल्में देखते हैं, फिल्मों के अंदर जो है वो मेंटल हेल्थ रिलेटेड अजीब अजीब चीज़ें होती हैं. पागल खाना जो होता है, वो पागल खाना कैसा होता है, उसकी क्या चीज़ें होती हैं, जो बनाने वाले हैं कई बार ये नहीं सोचते कि जो सामने देखने वाला है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन चीज़ों का. एक सोशल एनालिसिस होनी चाहिए इस चीज़ के बारे में कि ये जो आपने दिखाया, मुझे याद है फिल्म है तेरे नाम, या एक्चुअली नाम नहीं लेना चाहिए फिल्मों का, आप जानते हैं बहुत सी हैं, लेकिन एक फिल्म जो मुझे इस मामले में थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी वो थी युग पुरुष, जिसमें नाना पाटेकर एक रोल प्ले करते हैं जो एक असाइलम में, मेंटल असाइलम में है, और उनके पास शायद मनीषा कोइराला जाती हैं, एंड पूरी स्टोरी मुझे याद नहीं. लेकिन वो जो एक एक पूरा एक्सेस है कि कितना उनका ब्रेन काम करता है अच्छा, बट ही फाइंड्स हिमसेल्फ इनकेपेबल टू बी इन सोसाइटी. तो ये एक सिचुएशन है, वो एक मेंटल डिसऑर्डर था जिसको ट्रीट किया जा रहा था वहां पे. तो एक तरीका होता है किसी चीज को जो है वो दर्शाने का. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू शोकेस इट टू द वर्ल्ड, बिकॉज यू डोंट नो हु इज वाचिंग. So when you have to consider these things, it is very important. So ये जो stigma, so I think a few things that we can look at how to break stigma. Stigma can be broken by multiple levels. So we need to make a डाउन अप अप्रोच. हमको नीचे से शुरुआत करनी है कि जो नई जनरेशन आ रही हैं, हमको अपने आप को चेंज करना है.
चेंज कैसे करना है? अवेयरनेस क्रिएट करनी है। अवेयरनेस किस चीज़ की क्रिएट करनी है? जो टैबू होता है या जो स्टिग्मा होता है वो किन चीज़ों से होता है? वो शब्दों में जुड़ा होता है। सो देर आर वर्ड्स विच वी यूज एंड दीज वर्ड्स कैन बी वेरी पेनफुल फॉर द पीपल टू हेयर। अब हम किसी को जो है स्टीरियोटाइप करके एक टाइटल देते हैं, then that title becomes very very difficult at times for that person to absorb। वो उस चीज को सुनकर उन पर क्या गहरा प्रभाव पड़ता है, ये हमको जो है समझना चाहिए। सो जो शब्द होते हैं जैसे यू आर क्रेजी, क्यों आप ऐसे शब्द क्यों इस्तेमाल करें? पहले समझने की कोशिश करें कि ये शब्द आए कहाँ से। लोग जो है सेंसिटिव होते हैं चीज़ों से, जो है जल्दी इमोशनली रिस्पॉन्स कर देते हैं उन पे। दे कुड बी क्राइंग, बट आप उनको क्राई बेबी बुला लेते हैं, या आप उनको जो है वो जब ये भी कहते हैं कि तुम तो बहुत सेंसिटिव हो, मेल हो तो और भी ज्यादा, कि क्या लड़कियों की तरह रो रहा है। इन सब चीजों को, ये जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, हमें सोचना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, बिकॉज वो रेजिड्यू में हमारे सबकॉन्शियस में रह जाता है। एंड व्हेन वी ग्रो अप, कई बार हम जाने अनजाने उन्हीं चीजों को अप्रूव करने लगते हैं कि ये करेक्ट है। तो अगर हम बड़े होकर भी इन चीजों के बारे में अपनी अवेयरनेस रखें, लोगों से पढ़ें, लोगों को जानें, और जो चीज़ें हमें इम्पैक्ट करती हैं वो सोच के देखें कि औरों को किन चीज़ों से इम्पैक्ट हो सकता है। अगर हम इन चीज़ों पे ख्याल रखें तो मुझे लगता है बहुत फर्क पड़ सकता है। सो एक एक तो हुआ कि हमारे जो बचपन जो बच्चे हैं, फिर वो चाहे स्कूल में हो, विच मीन्स दैट द एजुकेटर्स एंड द पीपल अराउंड देयर रिलेटेड टू द स्कूल, families, friends, so all family, friends, relatives, everybody, so the society will need to change। एक दिन में नहीं होगा, साल लगे हैं बहुत, अभी और लगेंगे, लेकिन शुरुआत हमें अपने आप से करनी पड़ेगी। अपने शब्दों को बदलना पड़ेगा। हम किन चीज़ों से सार्केज्म या तंज मारते हैं लोगों के ऊपर, वो जो सटायर है हमारा, वो लोगों को कितना हर्ट कर सकता है। व्हाट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू सी इज कि जो मेंटल हेल्थ का प्रमोशन है, जब हम उस मेंटल हेल्थ के बारे में जो है लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे, आज के तारीख में क्या होता है, कोई अगर फील करता है कि वो थोड़ा लो फील कर रहा है, तो दूसरे उसको बोलते हैं, अरे कुछ कर ले, अच्छा हो जाएगा ठीक, चल घूमने चलते हैं। हो सकता है कुछ केसेस के अंदर कंपनी डज मेक अ डिफरेंस, साथ में रहने से जो है वो लोनलीनेस हट जाती है या कुछ हो, बट देयर कुड बी लॉन्गर लास्टिंग थिंग्स दैट नीड टू बी एड्रेस्ड। सो उन केसेस में क्या क्या एक इंडिविजुअल आज कह सकता है अपने दोस्तों से भी कि मुझे लगता है कि मुझे किसी काउंसलर से जो है मिलना चाहिए? कितनी दुख की बात है कि हम ऐसा नहीं कह पाते। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू कम आउट एंड से दैट आई नीड हेल्प। सो जब हम ये कह ही नहीं पाएंगे तो हम हमेशा छुपाएंगे, और छुपाई हुई चीज को कर पाना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि कोई लो है, तो हमें उसे जो है, पहली बात तो स्टिग्मेटाइज तो किसी तरह से करना ही नहीं चाहिए। हमें उसको जो है वो मजाक में भी जो है वो नहीं करना चाहिए, जो हम जनरली कर जाते हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमें उसको जो है स्पेस देना चाहिए, हमें उसके साथ रहना चाहिए अगर हम रह सकते हैं। हमें जनरल बात करनी चाहिए उसके साथ। वी शुड ट्राई टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट व्हेन द पर्सन कैन फील कंफर्टेबल इनफ टू से कि यार मुझे लगता है कि आई नीड सम सपोर्ट। जब ये बात आए तो आपका एफर्ट, और आप कहाँ से सपोर्ट लाएंगे? क्या आप ये इंफॉर्मेशन रखते हैं कि हेल्पलाइंस कहाँ पर हैं? क्या आप जानते हैं कि कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं, या किस किस को अप्रोच करना चाहिए? मैं ये नहीं कहता कि आप लिस्ट बना लीजिए, लेकिन आप जानिए कि ऐसे लोग हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, और ऐसी हेल्पलाइंस एग्जिस्ट करते हैं। आई एम सॉरी मीनाक्षी, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ये जो आपने कहा इट विल मल्टीप्लाई द स्ट्रेस, ये एक्चुअली मैं काफी देर से, तो ये एग्जैक्टली किस चीज पर है? अगर आप मुझे बताएंगे कि विच विल, व्हाट विल मल्टीप्लाई द स्ट्रेस, इफ इट इज अबाउट द वर्ड्स दैट वी यूज और द स्टिग्मा जो हम लोगों पे थोपते हैं। या सो प्रीति बिल्कुल ठीक बोला आपने, जैसे कि वी हैव टू बी केयरफुल विथ आवर वर्ड्स, दैट्स व्हाट आई हैव सेड। सो वंस अपने आपने जो है उनको जो है वो चीज़ें नहीं कही जो आपको नहीं कहनी चाहिए, आपने उनके साथ रह के जो है एक एनवायरनमेंट, एक स्पेस क्रिएट करा जहाँ पे वो कंफर्टेबल और सेफ फील करके शेयर कर सकें कि मुझे मदद चाहिए। तो अगर मदद देनी है तो कहाँ से देनी है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि कहाँ से हम ले सकते हैं वर्ड्स। राइट मीनाक्षी, आई टोटली एग्री विथ यू, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ दी सिचुएशंस, मैं
मेडिकल इश्यूज की बात नहीं करूंगा, विच मेंटल हेल्थ इश्यूज जिसके अंदर कि आपको डेफिनेटली यू नीड ट्रीटमेंट, यू नीड सपोर्ट फ्रॉम द प्रोफेशनल्स, बट उनके साथ भी और किसी के साथ भी जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं वो उनको कितना जो है वो दुख दे जाते हैं, ये हमें सोचना चाहिए. वी शुड बी केयरफुल एंड माइंडफुल ऑफ what words we use. Then we create the space for them to talk. Once they speak to us and when they speak out कि मुझे हेल्प चाहिए, तो हमें उनको जो है वो हेल्प करवानी चाहिए. मान लीजिए आपने काउंसलर का नंबर ढूंढा, आपने ऑनलाइन ढूंढा, आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं. अंश फाउंडेशन पे भी कई बार मैंने देखा है उन्होंने हेल्पलाइन के नंबर्स दिए हैं. और भी स्पेसेस हैं, आपने ऑनलाइन कहीं से कांटेक्ट ढूंढा, आपने दे दिया, उन्होंने नहीं फ़ोन किया. फिर क्योंकि दैट फीलिंग दैट फीलिंग वेयर द पर्सन नीड्स टू से कि आई विल पिक अप द फोन एंड कॉल अ काउंसलर, वो शायद हिचक है. दे स्टिल फील कि नहीं नहीं अच्छा मुझे नहीं चाहिए, मैं ना मैं ऐसा करता हूँ अगले ट्यूसडे को करूंगा, ठीक है ना, तब तक अगर ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम कर लेंगे. और वो ट्यूसडे आके चले जाता है एंड देन देयर इज अनदर ट्यूसडे एंड द पर्सन इज स्टिल फीलिंग लो. व्हाट यू एज अ गुड फ्रेंड कैन डू व्हाइल बीइंग देयर फॉर देम, आप उनके साथ पूछ सकते हैं, बात हो पाई, नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, एक काम करते, मैं ना अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेता हूँ. तुम ऑफिस जाते हो, जो भी उनकी दिनचर्या है, जो भी उनका जो है शेड्यूल है, थोड़ा सा उनसे बात करके यू शेड्यूल दैट अपॉइंटमेंट विद द पर्सन. बिकॉज वंस यू शेड्यूल इट फॉर विद देम, बिल्कुल कंपनी जरूर मैटर करती है क्योंकि अकेलापन कई बार जो है वो बहुत खाने लगता है. लेकिन अगर हम जो है वो ऐसा सिचुएशन बना दें अपनी सोसाइटी के अंदर कि इंसान अकेला अपने आप को ना फील करे और उसके अंदर ये सब हिचक ही ना हो, और वो आसानी से, जैसे मान लीजिए आपके चोट लग जाती है या आपको कोई भी पेन है या आपको कोई भी फिजिकल, आपको बुखार है, कोई भी चीज़ है, आप फोन करके डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके अपने लिए जो है वो जानने की कोशिश करते हैं कि इसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ. इसी तरह से आगे चल के मैं होप करता हूँ कि जैसे हम धीरे धीरे अपनी सोसाइटी को मोर अवेयर बनाएंगे, मोर एम्पैथेटिक बनाएंगे, संवेदना होनी चाहिए दूसरों की तरफ, सांत्वना नहीं चाहिए, संवेदना चाहिए. से नॉट सिंपैथी बट एम्पैथी इज रिक्वायर्ड. जब हम ये चीज़ रखेंगे तो सोसाइटी के अंदर अपने आप ऐसी सिचुएशंस बनेंगी कि जब भी किसी को एक रिक्वायरमेंट हो मेंटल हेल्थ इश्यूज को रिजॉल्व करने की, तो वो उसके लिए अप्रोच कर सकें राइट पीपल को, प्रोफेशनल्स को. हमारे स्कूल्स के अंदर काउंसलर्स होते हैं, क्या ये सिर्फ करियर काउंसलिंग है या और भी काउंसलिंग के लिए हर स्कूल के हर काउंसलर्स को मुझे पता है कि बताया जाता है. कितने हद तक जो है वो चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट हो पाती है, ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वर्कलोड बहुत होता है. बच्चे कह नहीं पाते अपनी बात, बच्चों को अपनी बात बताना कि मुझे ऐसा फीलिंग हो रही है बहुत मुश्किल है. और जो प्यूबर्टी की एज है उसके अंदर जब आपकी हार्मोनल जो है वो चेंजेस हो रहे हैं, आपको अपने आप की बॉडी को समझना मुश्किल हो रहा है, उस टाइम पे जो इश्यूज हैं, आपको जो है वो मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं बता पाना तो बहुत मुश्किल हो जाती है. सो इसलिए फैमिली का आपको सुदृढ़ करना, आपको जो है सपोर्ट करना, और आपके स्कूल के अंदर ऐसी सुविधा होना जिससे कि आप किसी से बात कर सकें, एक थर्ड पार्टी से बात कर सकें, जो शायद कई बार हम हिचकिचाते हैं अपने जान पहचान वालों लोगों से बात करने के लिए, हम उन चीज़ों को बदल सकें, हम बात कर सकें उनसे और फिर अपने आप को जो है उसमें फॉलो अप कर सकें. तो ये जो स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ रिलेटेड, वो दो चीज़ों में है. वो एक चीज़ तो ये कि मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना ही एक स्टिग्मा है, जैसा कि हमने बात करी. मजाक उड़ जाता है, आप कोई भी चीज़ उसके ऊपर करें तो वो मजाक बढ़ जाता है. नहीं, हमें बदलना है. आपको अपने आसपास कोई दिखे जो ऐसी बात कह रहा है, जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, हंसी मजाक कर रहा है उस बात पे जिससे किसी को आपको दिख रहा है कि दर्द हो रहा है या वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं. लड़ना नहीं है लेकिन आपको स्टेप अप करना चाहिए. हम सबको जो है स्टेप अप करके अपने आप को और अपने उन लोगों को जिनके लिए हम केयर करते हैं, उन सबके लिए हमें स्टेप अप करके उनको टोकना चाहिए. एब्सोल्युटली. अंजलि जी, आपने शब्द लिखे हैं बहुत ही सही हैं कि पॉजिटिव पीपल, पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव थॉट्स एंड पॉजिटिव एनर्जी, वी शुड एक्सचेंज गुड वाइब्स. बिल्कुल सही है. ये शुरुआत है. ये जब शुरुआत होगी तो उससे अपने आप जो है एक सोसाइटी, एक ऐसा वातावरण बनेगा जिसके अंदर मेंटल हेल्थ के ऊपर
बात करना एक टैबू नहीं होगा, एक स्टिग्मा नहीं होगा। और मान लीजिए हेल्थ किसी को भी जो है वो इश्यूज हो सकते हैं, कोई डिसऑर्डर हो सकता है तो क्या ये स्टिग्मा है उनके लिए? क्या हमें उनको जो है वो इस तरह से ट्रीट करना चाहिए जिस तरह से हम करने लग जाते हैं? नहीं, हमें उनको वो नाम नहीं देने हैं जो स्टीरियोटाइप्ड हैं। हमें उनके साथ जो है वो एम्पैथी रखनी है। ये चीज़ अपने में बहुत गहरी और बहुत बड़ी है, लेकिन शुरुआत हमें अपने आप से कर लेनी है, अपने आसपास से कर लेनी है। आसपास में बात करें, दूसरों से बात करें, जानें। और आज की तारीख में तो वर्चुअल कोर्सेज इतने अवेलेबल हैं, वेबिनार्स अवेलेबल हैं, अटेंड करके देखिए। हम और भी चीज़ें बहुत सारी अटेंड करते हैं, हम और भी चीज़ें देखते हैं। कभी समय निकाल के देखिए कि मेंटल हेल्थ के ऊपर कहीं चर्चा हो रही हो तो जान के देखिए। बेसिक वाले भी बहुत हो रहे हैं। उससे क्या होगा कि आपकी नॉलेज बढ़ेगी। आपकी नॉलेज ही आगे चल के जो है हमारी सोसाइटी को बदल देगी। अ, मैं चाहता तो बहुत कुछ था इसमें कहना, बट मैं देख रहा हूँ कि हमने सोचा था आधे घंटे का सेशन रखेंगे, आधा घंटा तो हो गया है। अगर कुछ आपके सवाल हैं तो आप वो लिख सकते हैं, वरना अगले 5 मिनट में मैं शायद ये बताना चाहूँगा कि व्हाट डज बैड मेंटल हेल्थ लीड टू। ये एक बहुत भारी क्वेश्चन है, ये बहुत लोडेड क्वेश्चन है। इसमें जानना पड़ेगा कि जो बैड मेंटल हेल्थ है वो किस चीज से रिलेटेड है। क्या मैं उसको जो है, मैं एज आई मीन मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अक्षत सिन्हा, जो एक क्वालिफाइड जो है वो साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ। आई डोंट थिंक दिस वुड बी अ क्वेश्चन दैट आई शुड आंसर इन स्पेसिफिक्स। उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि मैं आई कम फ्रॉम अ पॉइंट हु वुड रादर क्रिएट अवेयरनेस। आई एम समबडी हु वुड रादर पीपल स्पोक अबाउट इट। लेकिन हाँ, ये तो हम जो है वो हम और आप सभी जानते हैं कि जब हमारा मस्तिष्क, हमारा मानसिक जो है संतुलन बेसिक में नहीं है, हम उस पे जो है वो हम फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे मौके आ सकते हैं, हमें पैनिक अटैक हो सकते हैं, हम जो है वो बेसिक चीज़ों को फंक्शन कर पाने में मुश्किल होने लगेगी, हम लोगों से हटने लगेंगे। लेकिन और भी बहुत सी चीज़ें हैं। कहाँ पे मेडिकल इंटरवेंशन चाहिए मेडिसिन के द्वारा या थेरेपी के द्वारा, ये सिर्फ साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट और काउंसलर्स बताएं जो स्पेसिफिकली इसके लिए प्रोफेशनल हैं। आई थिंक वो बेटर रहेगा। हमारा काम ये रहना चाहिए कि कोई भी हो, उनको इस चीज़ से स्टिग्मा नहीं होना चाहिए हमारी वजह से। जैसे प्रीति ने शेयर करा कि हमें चैलेंज करने चाहिए स्टीरियोटाइप्स और मिथ्स। बिल्कुल सही बात है। हमारे आसपास जो व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारी अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन चल रही है, जैसे मैंने कहा, हमें एक बार चेक करना चाहिए। वी शुड बी वेरी केयरफुल कि क्या इंफॉर्मेशन है, क्या वो फैक्ट है कि नहीं है। हमें अपने आप पता करना चाहिए और बिना पता करे हमें आगे नहीं भेजना चाहिए। ये सिर्फ फेक न्यूज़ की बात नहीं है। कई बार ऐसी चीज़ें हैं भी हैं मेडिकल उससे रिलेटेड या किसी लोगों की बिहेवियर से रिलेटेड, वो भी इंफॉर्मेशन या वो टिकटॉक का वीडियो, वो कोई और वीडियो हम शेयर कर देते हैं बिना सोचे कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा। सो एक बार सोचें, रुकें, देखें इसका मतलब क्या बनता है लोगों के लिए। वी शुड बी वेरी माइंडफुल ऑफ द वर्ड्स वी यूज एंड द इंफॉर्मेशन दैट वी शेयर अहेड फ्रॉम आवर सेल्व्स। माइंड एटीज के अंदर हम वर्कशॉप्स भी करते हैं, हम सेशंस भी करते हैं, हम इन कॉन्वर्सेशन विद अक्षत सिन्हा एक अवेयरनेस सीरीज भी हमने चलाई थी। अभी भी हम बात करते हैं साइकोलॉजिस्ट से, साइकेट्रिस्ट से, एंड फ्रॉम पीपल हु कम फ्रॉम जिनको स्टिग्मेटाइज किया जाता है। जैसे क्वेयर कम्युनिटी से हमारे यहाँ लोग आए, उन्होंने बातचीत करी। अ, हमारे पास स्पेशली साइकोलॉजिस्ट आए जो क्वेयर कम्युनिटी के लिए जो है वो क्वेयर अप्रूव्ड थे। ये भी एक स्पेशल टर्म है, बट ये चीज़ें हमको जानना बहुत ज़रूरी है। अ, बिल्कुल मीनाक्षी, आई एग्री विथ यू। ये एक स्टेटमेंट ही नहीं है, सिर्फ बहुत ही सिंपल मैसेज है कि इट्स ओके नॉट टू बी ओके। बिल्कुल सही बात है। मैं ठीक नहीं फील कर रहा हूँ तो होता है, दिन है, बीतेगा। बट मैं उसको स्पेस देता हूँ और साथ ही साथ मैं कोशिश करूँगा कि अगर मुझे जो है वो लगता है कि ये परसिस्ट कर रही है, ये मेरी लाइफ स्टाइल को इम्पैक्ट करने लगी है, मेरी रिलेशनशिप्स को इम्पैक्ट करने लगी, तो मुझे डेफिनेटली आई शुड मेक एन एफर्ट एंड रीच आउट टू द राइट पीपल। बट सेल्फ अफर्मेशन बहुत एक अच्छी चीज़ होती है, जिससे हम अपने आप को जो है वो मोटिवेट करते हैं।
हमारे जो शब्द होने चाहिए दूसरों के लिए, वी शुड ऑलवेज बी ट्राइंग टू मोटिवेट अदर पीपल. Like I was saying in Mind It Is also, so what we try to do is we have this awareness campaign that we run through our sessions on Instagram. We create advocacy of mental health also, and we are also looking at education, जिसमें workshops for teachers, for young adults, for other people, where we are trying to get specialists who are probably from the same field. So getting a teacher to speak to the teachers about how to manage virtual classroom का stress, ये एक नई चीज़ है. ये कोविड की सिचुएशन में, ये लॉकडाउन की सिचुएशन में जब क्लासरूम जो है वर्चुअल हो गए हैं, टीचर्स के लिए कितनी परेशानी है, बच्चों के लिए कितनी परेशानी है, पेरेंट्स के लिए भी परेशानी. हमें सब के बारे में सोचना ज़रूरी है, और ये हमें और आपको समय निकाल के अपनी डेली ज़िंदगी से भी करना पड़ेगा. बिकॉज ना तो जो है वो इतनी बात हो रही है इसके बारे में ताकि वो स्पेस एंड एनवायरनमेंट बन सके ताकि इट इज़ ईजी एंड कंफर्टेबल फॉर पीपल टू स्पीक अबाउट इट, और ना ही जो है हम वो एक्सेस दे पा रहे हैं लोगों को. जो लोग चाहते हैं, हम सिटीज़ की बात करें, सिटी में एक्सेस इश्यूज हो जाते हैं. क्या हम जो है रूरल एंड सेमी रूरल या सेमी अर्बन स्पेसेस के अंदर वो एक्सेस दे पा रहे हैं लोगों को? क्या वो काउंसलर्स पहुंच पा रहे हैं उन लोगों तक? तो इस इसको मदद करने के लिए हम सबको स्टेप अप करना पड़ेगा. हम एटलीस्ट अपने आसपास के लोगों के लिए तो कर ही सकते हैं ना, शुरुआत कर सकते हैं. Sean D'Souza is saying, sir, how would someone deal with this economic crisis and financial problems? Unable to respond to this. A question which is a very common question. I agree. Everybody is facing a financial and economic situation. किसी भी तबके से हो, फिर वो किसान हो, माइग्रेंट लेबरर हो, या लेके जो है वो किसी भी सीनियर इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई भी हो, एवरीबडी इज, बिकॉज द टाइम्स आर अनसर्टेन. क्या करना पड़ेगा? बात करनी पड़ेगी, इंतज़ार करना पड़ेगा. पहले तो जो है जिस चीज़ से, महामारी से हम लड़ रहे हैं, उसको जो है वो निपटना है. जब तक कि उसका सिचुएशन क्लियर नहीं होता, डायरेक्टिव्स हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट, वी शुड फॉलो देम. देर आर लॉट ऑफ गुड थिंग्स दैट आर कमिंग आउट ऑफ इट, हम फॉलो नहीं करते. आज भी क्या हमने लॉकडाउन जो है वो ढंग से फॉलो किया? क्या हमने जो कोविड पेशेंट है उसको स्टिग्मेटाइज नहीं किया? क्या हमने जो कोविड के डॉक्टर्स हैं, जो हमारी फोर फ्रंट पे जो है हमारी स्ट्रेंथ है और लड़ रहे हैं हम उस महामारी से, अपनी लाइफ, अपनी फैमिली की लाइफ जो है उस पर करके, क्या हमने उनसे ट्रीटमेंट जो है वो गलत नहीं करा? वी एज अ सोसाइटी हैव टू चेंज. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कोविड से लड़ना है, कोविड के पेशेंट से नहीं लड़ना है ना. तो ये स्टिग्मा जो हम क्रिएट कर लेते हैं किसी भी चीज़ के साथ में, वो हमें नहीं करना है. हमें चीज़ों को अलग करके देखना ज़रूरी है. सो शॉन, आई थिंक आपका जो आंसर है वो बहुत डिफिकल्ट है आंसर करना इस वक्त. छोटी चीज़ें हैं, सेविंग्स, वो पेनी सेव्ड इज पेनी अर्नड जो एक कहावत है, वो बहुत ज़रूरी है कि हम रिस्ट्रिक्ट योर स्पेंडिंग्स. जाना कहाँ है? रेस्टोरेंट खुला नहीं है. आपकी एडिक्शंस हैं, अगर आप उन पे कम कर सकते हैं, आप कोशिश करें अपने आप उसको कम करना. आप कोशिश करें उन चीज़ों पे फोकस करना, अपने फाइनेंसेस जो अभी आपके पास अवेलेबल है, ये सेविंग्स ही हैं अभी. इट इज़ नॉट अ गुड सिचुएशन आउट देयर, बट वी ऑल हैव टू, वी आर इन दिस टुगेदर. आपने कहा ना, इट्स ओके नॉट टू बी ओके. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज वी आर ऑल इन दिस टुगेदर. लेट्स रिमेंबर दिस. नथिंग विल हैपन अनलेस वी ऑल कम टुगेदर टू हेल्प ईच अदर. बिल्कुल सही कह रही हैं अंजलि, आपने कहा कि एक्सेस इज एन इशू. आई एग्री एब्सोल्युटली. बट उस एक्सेस को हम इमीडिएटली नहीं चेंज कर सकते. आई एम श्योर देयर शुड बी मोर कोर्सेज, देयर शुड बी मोर पीपल हु शुड pick it up as a voluntary thing or as a career choice, where they should be compensated rightly, and it should be made an easier thing to be approached for. जब ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, ऑर्थोडोंटिस्ट हैं, डेंटिस्ट हैं, सब तरीके के आपके जो अलग अलग डॉक्टर्स के लिए एक स्पेशल वो है. साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट के लिए भी वी शुड हैव द सेम रिस्पेक्ट एंड दे शुड गेट द सेम नंबर ऑफ, बिकॉज ज़रूरत तो बहुत है उनकी. जैसा कि आप लिख रही हैं कि चैलेंजिंग टाइम्स हैव टू बी ब्रेव एंड पेशेंट इन एंड ट्राई फॉर अपॉर्चुनिटीज़. बिल्कुल सिचुएशन डिफ़िकल्ट है, अपॉर्चुनिटीज़ भी इसी में से निकलेंगी. मेरा ये मानना है, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये अगेन हमें जानने के लिए कि इंसान जो है, वी अडेप्ट, ह्यूमंस ऑलवेज अडेप्ट. सो वी विल ऑलवेज फाइंड सम वे ऑफ गेटिंग थ्रू दिस टुगेदर एंड वी विल फाइंड अ वे ऑफ मेकिंग आवर लाइफ बेटर. क्या लर्निंग्स मिली हैं? चीज़ें रुकी तो क्या हमें इकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा और नहीं समझ में आया?
हमारी अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं लाइफ के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा कि इसके पॉजिटिव्स हैं, क्योंकि इस महामारी के पॉजिटिव्स नहीं हो सकते। ऐसी सिचुएशन में जिसमें लाइव्स गई हैं, कुछ हुआ है, लोगों के मेंटल स्ट्रेस इतने बड़े हैं, अच्छा नहीं कह सकता मैं। लेकिन एट द सेम टाइम जब ये सिचुएशन एग्जिस्ट करती है, हम इसमें से फिर भी पॉजिटिव पॉइंट्स निकालने चाहिए, क्योंकि पॉजिटिविटी हमें अपने अंदर रखनी है और औरों के साथ भी करनी है। प्रवचन नहीं देने जैसे मैं दे रहा हूँ, बट हमारे को खुद की जो है अवेयरनेस क्रिएट करनी है, एंड दैट विल मेक अस बेटर इंडिविजुअल who are empathetic towards others, who do not stigmatize others, who do not go out there and take names, who do not stereotype people, who do not discriminate for any reason whatsoever, and least of all for somebody requiring mental health. uh, I don't think that is something that we should stigmatize people over. वो जो दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा स्टिग्मा है, कि मेंटल हेल्थ की हम बात नहीं कर पा रहे, और मेंटल हेल्थ, अगर कोई मेंटल हेल्थ इशू है हमारे पे, तो लोगों को पता ना चल जाए, इसको छुपा लो। नहीं, कोई, इट्स अ नॉर्मल थिंग, इट्स अ कंडीशन। वी विल, इट्स इवन इफ इट इज अ डिजीज, वी विल फाइट इट टुगेदर। वी आर ऑल इन दिस टुगेदर, एंड वी विल प्रिवेल। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। वक्त आएगा जाएगा, और भी वक्त आए हैं बुरे बुरे वक्त, तो जब अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा। हम अच्छे इंसान तो बने। Like I think Manjula has mentioned, I'm not remembering the name, but mentioned that let's be positive. Let's be positive people, give positive vibes, and come out and understand others. अब 40 मिनट हो गए बात करते हुए। अगर आप लोगों के कुछ सवाल हैं तो ज़रूर मैं जो है वो उनको मैं आंसर करना चाहूँगा। अदरवाइज मैं फिर यही रिमाइंड करना चाहूँगा कि अपने शब्दों को संभालें। अपने आसपास के लोगों के साथ जो है वो बातचीत करें तो सोच समझ के करें कि क्या आप उन्हें स्पेस दे रहे हैं, उनको फुल रिस्पेक्ट दे रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो। अपने से शुरुआत कर लीजिए। अपनी तरफ से तो स्टिग्मा रोकना शुरू कीजिए, स्टीरियोटाइप्स छोड़ना शुरू कीजिए। देखते हैं धीरे धीरे और भी बदल जाएंगे लोग, है ना। तो हम और आप साथ में मिलके वी विल स्टॉप दिस स्टिग्मा, वी विल स्टॉप द स्टिग्मा ऑफ मेंटल हेल्थ। अंश फाउंडेशन को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा, दैट अंश फाउंडेशन गिव, आई मीन इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज इट इज़ कंडक्टिंग सच सेशंस। मैंने डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर एक दो देखे थे, और भी मैंने देखे आर्ट से रिलेटेड थे, और भी थे। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन सब चीज़ों से हमारी अवेयरनेस बढ़ती है। आई एम वेरी थैंकफुल टू अंश फाउंडेशन फॉर कंडक्टिंग दीज सेशंस. I am very thankful that they invited me to be a part of this. I am very thankful to Preeti, who with whom I am running. I am the co-founder for Mind at Ease. अगर आप चाहें, आपके कुछ सवाल हो, चाहे आप किसी भी तरीके के सवाल हो, आप ज़रूर हम तक पहुंचाएं। हम अपनी पूरी कोशिश करें कि हम आपकी मदद कर सकें। इट इज़ अ इट इज़ एन इनिशिएटिव, देर इज़ नो, हमारे सेशंस फ्री होते हैं, हमारी वर्कशॉप्स फ्री होती हैं। कई बार जो है वो फोकस्ड होती हैं, उनमें सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाते हैं जो उससे रिलेटेड हो। बट बहुत ज़रूरी है कि जो, अगर आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो आप हमें contact@mind@ease@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है माइंड एट ईज के नाम से। हमारा जो है इंस्टाग्राम पे है, आप इंस्टाग्राम पे हमारे सेशंस देख सकते हैं, जिसमें हमने थिएटर से, साइकियाट्रिस्ट से, हमने बहुत सारे अलग अलग जगह के लोगों से, जैसे अंश फाउंडेशन कर रही है, और हमारे को चाहिए कि ऐसे बहुत से लोग हों जो ऐसी चीज़ें करें। थैंक्स गगन, आप कह रहे हैं कि काफ़ी आसान भाषा में काफ़ी ज़रूरी बातें की। आप तो मुझे जानते हैं कि यही मेरी भाषा है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है लोगों से बात करना। बट कितना अच्छा होता है कि हम और आप जो है वो रूबरू होके बात कर पाते। मुझे लगता है समय आएगा, जल्द ही हम लोग जो है आपस में साथ में बैठ के हंसी ठट्ठा भी कर पाएंगे, और इन सब चीज़ों के बारे में बात भी कर पाएंगे। Akash is asking, is increasing employment an urge to the higher standard life leads to the depression in youth? हो सकता है, लेकिन सिर्फ यही एक रीज़न नहीं हो सकता। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है, तो ज़रूरी बात है कि, मतलब ये तो नॉर्मल सी बात है कि किसी को भी अपने फ्यूचर को लेकर और फाइनेंशियल और स्टेबिलिटी को लेते हुए हम सबको बड़ा, मतलब घबराहट हो सकती है। तो इसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? ज़रूरत है कि इंडस्ट्री को सपोर्ट मिले, गवर्नमेंट से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट हों, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट्स हों, लोग अपने सेल्फ, मतलब दे शुड स्टार्ट
इनोवेटिंग थिंग्स, कि कैसे जो है वो काम कर सकते हैं। बहुत बड़ी चीज़ें भी ज़रूरी नहीं होती हैं करना, हम छोटी चीज़ों में भी खुश रहना सीख सकते हैं। सो ये जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, आपने बिल्कुल ठीक बोला। हु डिसाइड्स व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ दैट यू नीड टू मेंटेन? ये आई थिंक दिस इज अ क्वेश्चन दैट एवरीबडी नीड्स टू आंसर फॉर देमसेल्व्स। ये आप उसको प्रायोरिटाइज कैसे करते हैं अपनी जिंदगी को? दिस इज अगेन अ क्वेश्चन फॉर अनदर डे। आई वुड लाइक टू थैंक यू नाउ, and on behalf of Mindities and Ansh Foundation, I thanks to all the people who joined. Please take the word forward, stop the stigma. Thank you. Bye bye.